So I'm more concerned about women health as a woman. So, you know, these triceps, they get sag easily. We need to put focus on that. So I believe consistent efforts are required. जो ही periods आए, तो ये मानिए कि गर्ल का जो बॉडी है वो डिफरेंट है दैन बॉयज. That particularly for women weight training is very important. हालांकि सबके लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स ही सेट कि आप दिन का वेट ट्रेनिंग करें. अगर हम टोन मेंटेन रखें तो फिर एजिंग तो होगी नहीं ना, और पीरियड्स का इफेक्ट नहीं आएगा. बट आई थिंक एक टॉपिक विच इज स्टिल लेस टॉक्ड अबाउट इज द मेनोपॉज पार्ट. देन उनके आसपास की जो फैमिली है उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या फेज है, कैसे डील करना है. वो वुमेन जो है उनकी फैमिली में किस चीज से डील कर रही है, गो थ्रू कर रही है. जिस दिन शादी होगी उससे एक महीना पहले वो जिम जाते हैं, फिर वहाँ फिर वहाँ ओनली फॉर फिजिकल लुकआउट. आई थिंक हेल्थ पार्ट तो मिस ही हो जाता है. यस, द क्वेश्चन इज दैट टाइम दे वुड डेवलप इंजरी एज वेल. हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. ये पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगी, अपने बारे में अच्छा फील करना, अपने बारे में अच्छा बोलना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ यंगस्टर. Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रिदवाना सनम. She is a holistic well-being coach, a social entrepreneur, a philanthropist, an author and a mentor. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much कि आपने ये टाइम निकाला हमारे लिए. Thank you so much for inviting me and really happy to do a show with you. The pleasure is all ours, ma'am. मैम के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट अबाउट होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग. A few years back तक आई थिंक यू वुड अग्री, पीपल जो हैं वो मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पे इतना फोकस नहीं करते थे. फिजिकल हेल्थ को ही सिर्फ हेल्थ माना जाता है, फिटनेस माना जाता है. बट देन द टाइम्स आर चेंजिंग, द प्रायोरिटीज आर चेंजिंग. सो दिस एपिसोड इज गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स के इंडिविजुअल को 360 डिग्री हेल्दी एंड फिट रहने के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या टिप्स हैं, आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. सो कैन वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन? यस प्लीज. सबसे पहले अगेन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट मे बी अंडरस्टैंड व्हाट होलिस्टिक वेलबींग मीन्स एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें वो होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग क्या होता है और क्यों ज़रूरी है. ओके, I'll make it very simple. I believe we are human beings, am I right? Right. So well-being means being well. Means overall, emotionally, mentally, spiritually. So when we say holistic, it's as a whole, as a person. That means the environment matters a lot, am I right? Even our thought process, emotions, and software, which is called spiritual side, am I right? So I believe we all are spiritual beings experiencing the human life, human experiences, am I right? We are here to experience something. It's like a travel. So during this journey, earthy journey, we have to take the best care of ourselves, to know our self-worth, right? What God has gifted us, a body. We are the custodians of body. We are not the owners of the body. We will take it for granted. Right. It is gifted to us by the divine, and it is our responsibility to look after this body as whole. That's why we can say it's holistic well-being, living a peaceful, joyful life throughout the journey. For that, holistic well-being is required. We need to look after each and every aspect of life. Right. बहुत ब्यूटीफुल बात आपने बोली मैम, विच इज़ दैट वी आर नॉट द ओनर ऑफ दिस बॉडी. एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर लाता है, अदरवाइज वी डू टेक इट फॉर ग्रांटेड. वेरी ट्रू. हैव यू रियलाइज्ड इफ somebody would gift us something, let us say I am gifting you a mobile phone. It is a gift, it's close to your heart, right? You will take best care of it. True. If it is your own, you may take for granted. But if it is a gift, it comes with a sense of responsibility and love. Right. So divine has gifted us something. The moment we realize it, we get more careful to take best care of it. Right. Yeah, I believe that is very important. बिल्कुल. But also developing on the same aspect, I think आज का जो हमारा lifestyle है, even from the past decade, we have got so busy, maybe studies, career, family, or you can say all the worldly responsibilities, that कहीं ना कहीं हमारी जो health है वो responsibility तो हम consider करते ही नहीं है, वो prioritize करना has become very difficult. So if you could share a little, your perspective on that one,
And second also कि इतनी busy life में, because we cannot stay behind. That's also something very we have true. to keep we doing. have to achieve goals. Exactly. So उसके साथ हम अपनी health को कैसे manage कर सकते हैं, that too holistically. I believe it's all about balance. Am I right? Everyone has 24 hours. Right. That means time management is the top priority. So if as a person I have to take care of my family, which is personal life, Right. social life, as well as a professional life. Right. So I need to balance it. For that, I have to manage the time. And if I want to do better in each segment, each responsibility, that means the planning is very important. And prioritizing it is also very important. And understanding that this whole thing, whether I am a good family member, I am a good professional person, or I am successful, or whatever goals I have, if I am healthy, then only I am going to achieve it. Right. So that means it is dependent on my health. So health has to be the top priority. And हम सब ने सुना है, health is wealth. But इसको ना सिर्फ हम मानते हैं, जानते नहीं हैं. The moment we lose one organ or one body part because of some health issue, then to we will pay all attention on our body. Right. And we may leave job, we may leave our social life, we may leave the family also. Why? Because we get engaged with our own self. Right. So what I have observed as a counselor, if people are focused on outside of the body, then they are not aware about themselves. There is lack of self-awareness. Okay. And because of that, they are not paying attention on Their own body. That means they don't know the worth of the self. It's lack of self-worth, Right. self-realization, self-awareness, self-empathy, lack of self-compassion, lack of self-understanding. They may achieve their goals, but end of the day, they are not peaceful. They keep searching for peace, love, and joy throughout their life. बिल्कुल. And everybody is achieving the goals. I believe if we want to fulfill our desires, wishes, and goals, we need to pay attention on, especially on our health. And it's not manna ki health is wealth. It is about janna, knowing that health is wealth. If I'm able to take care of my own health, that means I'll be able to take care of others. If I am happy, I can make somebody feel happy. Am I right? So how we make people feel comes from inside us. What kind of energy we radiate. So everything is energy. If I'm radiating a positive energy, good vibe, that means I can have good relationships. I can have good people around me. I can attract the same people. So overall, this busy word is just a word, I believe. Because we all know there are so many books and so much information on internet that this brain is unlimited. If this brain is unlimited, that means we need to understand how to unlock the capacity of this brain as per our goal. And if we are able to do that, that means it becomes very easy. It is effortless. Actually, if we plan before execution and if we execute according to the time management. Right. So I have not realized so far. People around me, they are very successful. They have achieved their goals. They never said we are busy. They would always say we have enough time. Okay. Please tell us what project we are supposed to do. So the people who feel the life is busy, that means it is the indication, pay attention on time management, please. Right. And one can manage 2 hours or 1 hour daily for the health. In that 1 hour, what can they do? Breathing, deep breathing with hold for at least 15 minutes, which will bring peace and patience. And if we have patience, that means patience is opposite to the anxiety. Anxiety is because of lack of patience. And if we have patience, we can do one task completely with Focus. mindfulness. And if we are mindful, it will be very productive. Second can be a yoga or basic exercise or a walk or a dance or any activity, small activity, whatever you like. Please do that. Or cycling just for 15 minutes. That means half an hour. Then there is still Half an hour. With half us. an hour. 15 minutes, little bit of weight training.
which is very important, especially for girls, women. So I'm more concerned about women health as a woman. So, these triceps, they get sag easily. We need to put focus on that. We can focus on our tummy, which I have been doing since years, and still I'm not achieving my goal. So I believe consistent efforts are required. And the most important thing is 15 minutes where we can just give command to our nervous system, brain, the intelligence, the CEO of this body, how to execute the whole day. And if we can do few little meditation for 15 minutes, that means we are visualizing that day. We are preparing ourselves mentally that we are going to live this day according to this, and we are going to remind everything to our brain that, hey, this is my schedule and I can read it also while closing my eyes. If I remember this, nowadays it's very common, people keep saying, I forgot. Oh, it has just skipped somehow. I don't know what happened to me. This has become very common after COVID. That means we are not giving command to our nervous system, to intelligence properly, what task I have. That means the checklist, what to do list. That 15 minutes meditation will bring lot of balance and harmony for that particular day. I have experienced it practically, and I am speaking from the experiential point of view, what I have experienced. So I believe it's very easy to manage time and live a joyful and peaceful life. Okay, so ma'am, जैसे कि आपने बीच में ये भी mention किया that particularly for women weight training is very important. हालांकि सबके लिए at least 15 minutes you said कि आप दिन का weight training करें. There is a myth particularly in the Indian society कि women weight training करेंगी तो बल्कि हो जाएंगी, womanly दिखेंगी ही नहीं, right? So I want you to burst that myth and also specify कि weight training women के लिए क्यों important है, because अक्सर I think वो 30s या 40s के बाद जाके realize होता है, 20s में realize भी नहीं होता. Yes. So if you can build a little bit on that. There is a difference between tone and strength, muscle tone and muscle strength. Tone is controlled by the nervous system. जो हमारी nerves है, उनकी वजह से हमारे muscles को supply आता है और muscles जो है वो टोन अप होनी चाहिए. जैसे मैं बेसिक एग्जांपल दूंगी, अगर कोई जिम जाते हैं और उनकी पूरी फुल बॉडी अच्छी है, बट अगर पैरालिटिक अटैक हो गया तो वो बहुत बल्कि होंगे, स्ट्रांग है, बट वो अपना हाथ नहीं उठा सकते. क्यों? क्योंकि पैरालिसिस हो गया. Am I right? सो इसका मतलब ये है कि कोई और भी चीज़ है जो सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, वो फुल स्ट्रेंथ में है, बट उनका हाथ नहीं उठ रहा है. इसका मतलब है कि जो नर्व्स है जो सप्लाई करती है मसल्स को, उसकी वजह से सप्लाई कम हो गया है, टोन लो हो गया है. तो गर्ल्स का टोन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये लिंक्ड है हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ. जो ही पीरियड्स आए तो ये मानिए कि गर्ल का जो बॉडी है वो डिफरेंट है दैन बॉयज़. इसलिए वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लो वेट्स मोर रेपिटेशंस. अगर हम वेट्स कम लेते हैं, लेट से 5 kg, और हमने रेपिटेशन ज़्यादा किए, तो उसका मतलब ये है कि हम टोनिंग करेंगे, उसको स्ट्रेंथ नहीं कहते. जब बल्क बनता है, बल्क बनाने के लिए ह्यूज वेट्स करने होते हैं. वेट ट्रेनिंग, वेट्स ज़्यादा होंगे, रेपिटेशन कम होगा, उससे बॉडी बनती है. लेकिन मैं जहाँ तक के फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स है, फिटनेस कोचेस है जो इंजरी लेके आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी, उनकी तो फिट बॉडी है, वो वेट ट्रेनिंग रोज करते हैं. दैट डजंट मीन कि वो बल्कि लगती हैं, वो फीमेल नहीं लगती. एम आई राइट? बिल्कुल. सो ये जो मेल और फीमेल वाली बात है, मेल को जेंडर बेस्ड वेट ट्रेनिंग नहीं है. वेट ट्रेनिंग के और भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उनका जेंडर क्या है, एज क्या है, क्या सूट करेगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है कस्टमाइज्ड प्लान करवाए, एक्सपर्ट एडवाइस ले टाइम पर. चाहे वो आपका जिम ट्रेनर है, योगा ट्रेनर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, एक बार आप अपना असेसमेंट करा के आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपका गोल क्या है, और अपना उसी तरीके से अपना प्लान ऑफ एक्शन बना दे. डाइट में भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. अच्छा डाइट हो तभी अच्छी बॉडी बनती है. नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन कि मेल और फीमेल जेंडर दिखना, मेरे ख्याल से फीमेल एनर्जेटिकली शक्ति है. सो फेमिनाइन एनर्जी है, इट्स नॉट अबाउट बॉडी. बॉडी को जैसा हम चाहें वैसा बना दें. तो अगर लो वेट्स, मोर रेपिटेशंस, टोनिंग हो गई, तो हम तो स्ट्रेंथ बल्क की बात करनी. वी डोंट वांट टू लुक लाइक अ मैन. एम आई राइट? सो जब मेरा वो गोल ही नहीं है तो मेरा मैनली बॉडी नहीं बनेगी.
जो बनेगी वो फेमिनाइन ही बनेगी, वेल टोन्ड बनेगी, ताकि मेरी मसल्स का जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है वो हेल्दी रहेगा। और विवेकानंदा ने इस पे बोला था कि मसल्स से ज़्यादा नर्व्स पे ध्यान दिया जाए। मतलब मेक श्योर दैट योर नर्व्स आर मोर स्ट्रॉन्गर दैन द मसल्स। हम क्या करते हैं फिजिकल बॉडी में, हम सिर्फ मसल्स पे ध्यान देते हैं, बट हम नर्वस सिस्टम भूल जाते हैं। तो टोनिंग करने के लिए मेरे ख्याल से गर्ल्स को पीरियड्स के बाद ध्यान रखना चाहिए। जैसे फंक्शनल वर्कआउट है, टोनिंग है वो, जब हम बॉडी का ही वेट यूज़ करते हैं। योगा हो गया, जो पावर योगा है, जो बॉडी शेपिंग के लिए किया जाता है, जो भी शेप चाहिए हमें, वो वेट ट्रेनिंग में ही माना जाएगा, बिकॉज हम बॉडी का वेट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। अगर हम एक्सटर्नल वेट्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग लो वेट्स लेंगे, रेपिटेशन हाई लेंगे। अगर हम टोन मेंटेन रखें तो फिर एजिंग तो होगी नहीं ना, और पीरियड्स का इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? सेरोटोनिन और डोपामाइन 2 हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, केमिकल्स और हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन केमिकल है। तो अगर वो रिलीज हो जाए तो वो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम है, ये जो पीरियड्स का पीसीओडी वगैरह होना, अगर कार्डियो करेंगे तो पीसीओडी नहीं होगा। एम आई राइट? वी कैन प्रिवेंट इट। इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप सोचिए अगर एक सो कॉमन आज के डेट। यस, वेरी ट्रू। तो अगर आजकल की गर्ल्स स्पेशली अपना ख्याल रखेंगी फिजिकल एक्टिविटी से, तो मेरे ख्याल से टोन वेल मेंटेन रहेगा। एंड वो यूथफुल रहेंगे, अपनी एज से कम दिखेंगे, और अपने हेल्थ की रेस्पेक्ट करेंगे कि जो गिफ्ट है उसको वेल मेंटेन रखें। वो मेंटेनेंस है एक, प्लस टारगेट ओरिएंटेड होगा। नहीं तो होता क्या यंग गर्ल्स में, जिस दिन शादी होगी उससे 1 महीना पहले वो जिम जाते हैं, फिर वहाँ स्टार्ट होते हैं, फिर वहाँ वो ओनली फॉर फिजिकल लुकआउट। आई थिंक हेल्थ पार्ट तो मिस ही हो जाता है। यस, वो क्या करते हैं, क्योंकि लहंगा पहनना है। एम आई राइट? दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर अटायर, हाउ दे लुक। ट्रू। द क्वेश्चन इज दैट टाइम दे वुड डेवलप इंजरी एज वेल। उल्टा वो जो शादी का चार्म था, वो जो हैप्पीनेस थी, वो तो पेन की वजह से, पेन एंड प्लेजर कांट गो टुगेदर। एम आई राइट? तो उस टाइम पेन आता है, इंजरी आती है, वो हमारे पास आते हैं। बहुत सारे बॉयज़ भी पूरा वर्कआउट उसी टाइम करते हैं, 2 to 3 मंथ से शुरू होके वो इंजरी करते हैं, और जो उनको गोड़ी पे बैठना होता है उससे पहले फिजियोथेरेपी में आते हैं, हम टेप कर रहे होते हैं। अच्छा, बैक जो है स्टेबल रहना चाहिए उस टाइम पर। सो मेरे ख्याल से किसी भी फंक्शन को अगर हमें एंजॉय करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें, और हम थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंसी में रोज़ 15 मिनट्स to 20 मिनट्स अपने लिए निकालें, और हम अपना ख्याल रखें। ट्रू। एंड जैसे कि अभी आप पीरियड्स की और पीएमएस की बात कर रहे थे, पीसीओडी की बात कर रहे थे, आई थिंक पीसीओडी की फिर भी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है यंगस्टर्स में। पीएमएस तो बिकॉज लाइक आवर जनरेशन ऑफ गर्ल्स, वी आर मोर वोक, वी डोंट कीप क्वाइट। हमारा पीएमएस हो रहा होता तो वी एक्चुअली लुक फॉर सॉल्यूशंस, वी टॉक अबाउट इट। बट आई थिंक एक टॉपिक विच इज स्टिल लेस टॉक्ड अबाउट इज द मेनोपॉज पार्ट। वेरी ट्रू। बिकॉज अगेन वो अभी वो जनरेशन सफर करिए जिनके लिए पीरियड्स एक टैबू रहे हैं, जिन्होंने उस बारे में बात करना नहीं सीखा। एंड देन उनके आसपास की जो फैमिली है, उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या फेज है, कैसे डील करना है, वो वुमेन जो है उनकी फैमिली में किस चीज़ से डील कर रही है, गो थ्रू कर रही है। सो अगर आप मेनोपॉज के बारे में भी फॉर वुमेन एज वेल एज द पीपल अराउंड देम कुछ टिप दे सकती हैं कि उसे कैसे गो थ्रू किया जाए। ये वैसी वाली बात है जिसे हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ट्रैवल। पीरियड स्टार्ट होने से मेनोपॉज तक का एक जर्नी है विमेन की, और जो कि वो बचपन से ही जानती है। एम आई राइट? टीनेज से हमें पता होता है एक मेनोपॉज भी एक चीज़ है जो 40 to 50 के बीच में आएगी। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली जब लेडीज़ शादी करती हैं, बच्चे करते हैं, तो वो इस फेज़ की मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती। वो जैसे उनके लिए सरप्राइज होता है कि मेरे इरेगुलर पीरियड्स हो गए अचानक। एम आई राइट? उसकी वजह से वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उनकी पेशेंस कम हो जाती है, घर में क्राइसिस मैनेजमेंट उठता है, वो बच्चे पे बहुत ही रूड बिहेव करती हैं, और कुछ माएँ उस टाइम पर फिजिकल अब्यूज़ करती हैं, वो उन पे गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वर्बल अब्यूज़ भी होता है बच्चे को। तो उससे बच्चे के साइकी पे, उसके साइकिक जो डेवलपमेंट हो रही होती है ब्रेन की, वो उसको डैमेज कर देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को। तो दैट मीन्स एज अ विमेन, अगर मेरी बच्ची है या बच्चा, जो भी बेटा है बेटी है, मुझे ये पता होना चाहिए मेरा मेनोपॉज का एक स्टेज आएगा, और वो मेनोपॉज जो है वो नर्वस सिस्टम को भी और मेरे बिहेवियर को भी हिट करेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन से आपने देखा होगा, हमारा जब प्री मेंस्ट्रुअल होता है उस टाइम पर हम बहुत ही मूडी हो जाते हैं, मूड स्विंग हो जाता है। तो मेनोपॉज इज मूड स्विंग। अगर मूड चेंज हो गया, हस्बैंड तो मैनेज कर ले,
बट बच्चे कैसे करेंगे, बिकॉज बच्चे पर ही निकलता है सारा. Am I right? Mostly. So they are the targeted audience for menopause. So होता ये है कि हम उनकी पर्सनालिटी बनाने के बजाय गलती से केयर और लव कहिए इसे, बट हम उनको बिगाड़ रहे होते हैं, हम उनको डैमेज कर रहे होते हैं unintentionally. हाँ, फिर वो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट को जा रहे होते हैं. मेरी मम्मी का नेचर चेंज हो गया अचानक. वाई? बिकॉज इट इज़ अ सरप्राइज कि मेरी माँ ऐसी थी नहीं और अब मेरी माँ ऐसा बिहेव कर रही है. तो बच्चा उसमें कुछ नहीं कर सकता. और कुछ बच्चियाँ होती भी है जो माँओं को इन्फॉर्म करती है टाइम पर, बट वो क्या करती है, वो उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. कहते अरे आपको नहीं पता, मैं आपसे बड़ी हूँ एज में, मुझे पता है, मैंने दुनिया देखी है, मेरे पास तजुर्बा है. बट हम ये भूल जाते हैं आजकल का 20 ईयर्स का जो बच्चा है उसके पास फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है. दैट मीन्स उनकी जो मेच्योरिटी है वो 30 है. 10 ईयर्स ऐड करें या 13 ईयर्स आप ऐड करिए. दैट मीन्स आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू माई चाइल्ड एज इट इज़ 33. आई कांट से 20 का है. एम आई राइट? सो हमारी जनरेशन माँ बाप की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट थी. आपकी जनरेशन को सब पता है कहाँ पे क्या है. तो उनको अपनी बच्चों को उनकी एडवाइस को सीरियस लेना चाहिए. नंबर 1, अगर वो कहते हैं डॉक्टर को दिखाएंगे तो जाना चाहिए. गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये तो सब जानते हैं. लेकिन उस टाइम पर साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो किसी भी हाल में अगर अपना बिहेवियर चेंज हुआ और अगर अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर चेंज हो गया है और आपके पीरियड्स थोड़े भी फ्लक्चुएट हो चुके हैं, दैट मीन्स मेनोपॉज शुरू हो गया, तो प्लीज़ आप एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लें ताकि बिहेवियर चेंज ना हो जाए. वो साइकोलॉजी के अंडर आता है. और सबसे दुख की बात यह है कि हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जबकि इसी के नीचे पूरी बॉडी है. अगर ये ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल है, जैसे एक रिमोट कंट्रोल है, तो वो मेंटल हेल्थ है. अगर वो ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है. अगर हम ऑर्थो के पास जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास प्राउडली बोलते हैं हम फिजियो कराने जा रहे हैं, हम पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के, तो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट क्यों हमें बहुत अलग डिपार्टमेंट लगता है कि लोग हमें कहीं पागल ना कहें. बट पागल वर्ड तो है ही नहीं. हमने नहीं बोला कि मेंटली प्रॉब्लम है. हम कह रहे हैं कि थोड़ा हेल्थ इशू है, मेंटल हेल्थ का इशू आ सकता है, उसको प्रिवेंट करेंगे, बिहेवियर अच्छा रहेगा, हमारा घर जो है सुखी रहेगा, जिसको सुख कहते हैं, खुश रहेगा, और एक खुशहाल फैमिली, खुशहाल एनवायरनमेंट जो रहेगा, सबका करियर बहुत अच्छा बनेगा. तो एक फीमेल की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका काम है घर का एनवायरनमेंट सुखी रखना, खुश रखना. अगर वो पीस और जॉय मेंटेन रखेंगी, उनका अपना करियर, अपने बच्चों का करियर, अपने हस्बैंड का करियर, सब बैलेंस हो जाएगा. तो एक विमेन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थी होती है घर को एनवायरनमेंट पीसफुल और जॉयफुल रखना, ताकि हमारे बच्चे खुशियाँ बाहर ना ढूंढें, वो गलत रिश्ते चूज़ ना करें. वो घर में स्ट्रेस है इसलिए बाहर ढूंढते हैं रिश्ते, और दे एंड अप विद रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड दे एक्सपीरियंस इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. और फिर हम ही लोग होते हैं जो उनको डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं. बट हम ये नहीं सोचते कि इसका रूट क्या है, ये शुरुआत कहाँ से हुई. क्योंकि घर में जो हस्बैंड वाइफ की फ़ाइट होती है, बच्चा नहीं बर्दाश्त कर पाता है. और आजकल के जो बच्चे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से उनका करियर चैलेंजेस बहुत है. इस दुनिया, आजकल की दुनिया में करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत चैलेंजेस ऑलरेडी है. तो एक बच्चा ऑलरेडी फेस कर रहा है, अब वो स्टूडेंट है, क्लासरूम है और प्रोफेशनल है, लेकिन उसके चैलेंजेस बहुत है, कंपटीशन बहुत है. तो घर में ना पीस होना चाहिए. जब हम घर आ जाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि बस ये स्वर्ग है, ये जन्नत है. One should look forward to coming home. हाँ, तो घर का ना मम्मी का काम है, क्योंकि उसका असर रहता है पूरे घर पे. अगर मम्मी का मूड चेंज होता है, आपने देखा पूरे घर का ही चेंज हो जाता है. सो दैट मीन्स इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर. इसको लीडरशिप कहेंगे. वाई? बिकॉज मेरा जो कॉस्ट्यूम उस टाइम है वो एज अ मदर है. मैं कॉस्ट्यूम में हूँ, मैं एक यूनिफॉर्म में हूँ. लेट अस से अगर मैं यूनिफॉर्म में हूँ, एक फौजी है, फौजी जब अपनी यूनिफॉर्म में होता है तो उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पुलिस ऑफिसर को है, लॉयर को है, डॉक्टर जब हम लोग कोट पहनते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल. इफ आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मदर, आई एम रिस्पॉन्सिबल. रोल ऑफ अ वाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल. तो मेरा कंसर्न ये है, ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेनोपॉज है, जो मुझे अंदर चेंज कर रहा है, कुछ जो मेरे बस में नहीं है, तो एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी है ताकि अपने रिलेशनशिप्स को और अपने हेल्थ को बचाने के लिए. तो मेनोपॉज में हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है. Got it. I think ये बहुत ही important aspect है, because usually women don't talk about it. They take it for granted. और वो वेट गेन करते हैं उसी पीरियड में.
राइट। और फिर वो बोलते वेट स्लिमिंग करना है, बच्चे बोल रहे हैं आप बहुत मोटी हो, मेरा हस्बैंड कहता है बहुत फैट हो गई हो, एम आई राइट? तो वो ब्लेम गेम कहते हैं हम उसे, दे पुट इट ऑन देयर फैमिली अगेन, बट दे डोंट रियलाइज कि हार्मोनल चेंजेस से वेट गेन होगा, एम आई राइट? अगर वो उसी टाइम डाइटिशियन को कंसल्ट करें, उसी टाइम मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट को करें। और आज सबसे अच्छी बात है टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉल से सब काम हो जाता है। आजकल वीडियो काउंसलिंग्स अवेलेबल है, आजकल कंसल्टेशंस अवेलेबल है, क्योंकि टेलीमेडिसिन वीडियो वाला जो साइड है इसका या कॉल वाला, ये 2020 कोविड के बाद बहुत कॉमन हो गया है। सो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या विलेजेस हो या कहीं भी हम हैं, दैट मीन्स हम वीडियो का बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। अगर हमें एडवाइस पता होगी तो हम अपने ख्याल खुद रखेंगे, क्योंकि ख्याल रखने के लिए कोई नहीं आता, ख्याल अपना खुद रखना होता है। हम कभी कभी सोचते मेरे बच्चे मैंने पाले हैं तो वो मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं रखता। ये विमेन की स्टेटमेंट है, स्पेशली मैं काउंसलर हूँ। बट मैं ये सोचती हूँ कि आप अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकते? तो आपकी बॉडी है, अगर आपका हेल्थ इशू ऐसा ऐसा हो गया तो आप तो फैमिली पे बोझा बन सकती हैं। सो दैट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम कहते हैं ना कि जब हम, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, जब हम फ्लाइट में होते हैं ना तो हम कहते हैं पहले खुद को मास्क लगाएं फिर बच्चे को। अगर एक परिवार संभालना है, एक फैमिली संभालनी है, और एज ए विमेन लीडर है, ऑफिस संभालना है, एम्प्लॉयज़ है, हम टीम लीडर्स होते हैं, तो लीडरशिप का काम है पहले अपना ख्याल रखना, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बनना। जो हम प्रैक्टिकली होते हैं, जो हम एक्शन में होते हैं, वो सब हमसे देख देख के सीख लेते हैं। तो हमें ज़्यादा प्रीचिंग की ज़रूरत नहीं होती बच्चे को बताना, बस मुझे रोल मॉडल बनना होता है। अगर मैं रोल मॉडल बनूं तो मेरे जो कलीग्स हैं वो मेरा कॉपी ऑटोमेटिकली करेंगे। सो आई बिलीव जो हम रेडिएट करते हैं, जो हम होते हैं, पहले हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उस पर कॉन्फिडेंस लाना कि मेरी यूनिक जर्नी है, मैं यूनिक यही हूँ। और जब हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो बाकी सब हमसे मोहब्बत ही करते हैं, पक्का। Very true, very beautifully put, I think. And Khaskar, I would want that whoever is watching this video, share it with the women you know, particularly elderly women, maybe your moms, your aunts, because हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं कल्चर है that women do not prioritize themselves, they do not take care of themselves. बट एज मैम हैज़ राइटली सेड कि अगर आप बाकियों का ध्यान रखना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर सकते। सो डू नॉट से कि मैं घर के कामों में बहुत बिजी हूँ इसलिए अपना ध्यान नहीं रख पाई, मैं ऑफिस के कामों में बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं अपना ध्यान नहीं रख पाई, राइट? बिकॉज टिल द टाइम यू डू नॉट फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर अल्टीमेटली इवन कॉम्प्रोमाइजिंग वाइल टेकिंग केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फैक्टर्स आज की डेट में यंगस्टर्स के लिए जो पहले नहीं होते थे। maybe even 20 years तो I would say कि अब एक बड़ी एज हो गई है, even 14, 15, 16 year age वाला बच्चा is also going through stress and anxiety and so much competition. Yes. How can that one student जो शायद even understand भी नहीं कर पाता completely कि ये कैसी feelings हैं, how can that person deal with them? Maybe some tips or tricks for them to deal with such situations, stress or anxiety, अपने एंड पे हाउ वी कैन मेक आवर लाइफस्टाइल बेटर, ताकि हम उन चीज़ों को बेटर डील कर पाएँ। I am able to do the counseling from teenager to the 70 years old age group. Okay. Right. So I have realized the teenagers have to understand कि scientifically neuroscience के मुताबिक, quantum physics के मुताबिक, क्वांटम हीलिंग के मुताबिक देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसका यूज़ किया गया है, इसको मार्केट किया गया है, और जो वीकर ब्रेन्स है वो उसको बाई करते हैं, वो बायर्स है। और अगर हम इसी को ध्यान से देखेंगे, जो लोग सक्सेसफुल है उनके पास ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। नाउ आई विल मेक इट वेरी सिंपल व्हेन आई से क्वांटम हीलिंग, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, आई एम राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस और एंजाइटी के सिर्फ बीच का जो, जैसे दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है, स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में प्रेजेंट है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो लोग फ्यूचर थॉट्स के, फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनको एंजाइटी डेवलप होती है, उसको हम एंजाइटी कहते हैं मेडिकली, क्लिनिकल डायग्नोसिस। दैट मीन्स वो इंसान जो है प्रेजेंट में नहीं रह रहा है, प्रेजेंट लाइफ जो उसकी है वो उसको माइंडफुली नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पास्ट बनता है। या उसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो चीज़ें नहीं हुई है पास्ट में, तो ब्रेन की एक कैपेबिलिटी ये है कि वो उसी को रिवाइंड करेगा,
जो नहीं हुआ है, जो नेगेटिव हुआ है, जो अच्छे से नहीं हुआ। वो खुशी का मोमेंट याद नहीं रखता, जो उसके मुताबिक हुआ वो भी नहीं याद रखेगा। जो नहीं हुआ है, जहाँ उसको डिसरिस्पेक्ट हुई, ईगो हर्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, अचीव नहीं हुआ, तो वो उसको रिवाइंड करेगा फास्ट। अब वो जो पास्ट में जीना है, जो कि गया है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिस पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कल के दिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो लोग पास्ट में जीते हैं उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, जो लोग फ्यूचर में जीते हैं उसको एंजाइटी कहते हैं। अगर एक टीनेजर है, उसका प्रेजेंट में जो दिया गया है टास्क, उसको उस पर फोकस करना चाहिए। जो पास्ट में ठीक नहीं हुआ है उससे लर्निंग लेनी चाहिए कि क्या बेटर हो सकता है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस के मुताबिक हुआ है। जो हमारे मुताबिक नहीं होता उससे हम बेटर लेसन सीखते हैं, वी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, एम आई राइट? हम इवॉल्व होते हैं, तो हमने वो विजडम बनाया, हमने वो एक्सपीरियंस लिया है, बट वहम नहीं रखना, नेगेटिव उसको नहीं करना फीड कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, नहीं, वो नहीं हुआ है, इट डजंट मैटर, बट आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। उसके बाद में हम प्रेजेंट में जो दिया गया है उसको बेटर करना है, ताकि वो पास्ट की तरह हम पछताते ना रहे। सो चाहे एग्ज़ाम प्रेशर हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे कोई जॉब हमें अचीव करना है, किसी कंट्री में जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो एंजाइटी क्रिएट करके कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। और पास्ट पे भी कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर में भी कंट्रोल नहीं है, हमें कंट्रोल है प्रेजेंट पे। तो अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो मुझे लग रहा है कोई ना स्ट्रेस है और ना ही एंजाइटी है। सबसे बड़ा प्रेजेंट में रहने के लिए एक्शन चाहिए। ओवर थिंकिंग भी कुछ नहीं करेगा सोचते सोचते। आई थिंक ओवर थिंकिंग तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज एम आई राइट? व्हाई? बिकॉज ब्रेन फ्री है। ब्रेन को अगर आप एक टास्क दोगे और माइंडफुली आपने पूरा फोकस करके उसमें कुछ किया, तो हमारा, आप देखिए भगवत गीता में क्या है, ये कहते हैं कि आपका काम है कर्म करना, बट अटैच नहीं होना रिजल्ट के साथ। एम आई राइट? तो मैं नहीं बोलूंगी आउटकम यही आएगा, मैंने वो कर्म किया, मैंने वो टास्क किया, उसमें से वो रिजल्ट आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक्सपीरियंस हो गया है, दोबारा करूंगी। दैट मीन्स हमें अगर होली बुक ही गाइड कर रही है तो उसके बाद भी हम रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, और रिजल्ट जब नहीं आता है और फिर लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, या स्ट्रेस हो जाता है, या एंजाइटी हो जाती है। ये वर्ड्स है सिर्फ। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एंजाइटी स्ट्रेस को पहले तो यहाँ से डिटैच कर दीजिए कि ये कुछ नहीं होता, ये मेरा पास्ट और फ्यूचर है जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पास प्रेजेंट रब ने दिया है, और मेरे माँ बाप है जो सपोर्ट कर रहे होंगे। किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है यंग एज में, कभी कभी नहीं मिलता है, तो वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हम खुद ओवरकम करते हैं। तो हैव करेज, आपको अपने इन्फ्लुएंसर्स चूज करिए, आपको क्या गोल अचीव करना है, जिन्होंने वो अचीव किया है। अगर वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। और हमारे पास बेस्ट लाइफ स्टोरीज है आजकल इंटरनेट पे, तो खुद को मोटिवेशन में रखना ज़रूरी है। प्रेजेंट में बेटर एफर्ट्स लगाने हैं, एफर्ट्स, कर्म में पीछे नहीं हटना हमें। आई थिंक बहुत जो मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को लेके, वन, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। सेकेंड, बिकॉज वी लिव इन एन इंस्टेंट एरा, तो हमें लगता है कि मैं भी सक्सेस भी बहुत जल्दी आ जाता है, और फिर जब वो नहीं आता तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, यू नो, जस्ट स्क्रॉलिंग, हमें लगता है सब आसान है। एंड सेकंड ऑल्सो सोशल मीडिया के कारण द कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया, हमें सब वेरी लोअर एनर्जी, ग्लोरीफाइड लगती है। कंपैरिजन इज वेरी लो एनर्जी, बिकॉज सपोज हम दो है, हमारी यूनिक जर्नी है। बिल्कुल, एम आई राइट? रब ने हमारी जर्नी फिक्स रखी हुई है, और हमारे कर्मा उसको चेंज कर सकते हैं। इतनी सी फॉर्मूला है, और ये हमें बार बार समझाया जाता है। तो उसके बाद में हम कंपेयर क्यों करें? आज आपको कुछ बेटर मिल रहा है, कल मुझे मिल रहा है, इतनी सी बात है, बात वक्त की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग, हम सब एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो सकते, बिकॉज सब यूनिक कोड पर है इस जर्नी में, और हम सब बहुत ही वर्दी सोल्स है बॉडी में, एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। तो अगर हम डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फिर उसमें कंपैरिजन नहीं है। ये जो जेलस होता है, जेलस, डाउट, पोजीशन, खासकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यंगस्टर्स में अफेयर चलते हैं। वाई? बिकॉज केमिकल और हार्मोन जो है पीक पर होता है, और जिसको हम लव समझते हैं वो अट्रैक्शन हो सकता है, वो हो सकता है सिर्फ दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता इसमें, या लस्ट हो। तो हमें जानना चाहिए कि लव एक्चुअली हाउ इट फील्स, व्हाट इट इज। तो उस पर भी डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक ब्रेकअप हुआ नहीं और डिप्रेशन हुआ दूसरे साइड से, या हमारे करियर पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ माइंडफुली लोगों को चूज़ करें, और उनको ना परखना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, जब हम पेट लेने जाते हैं तो हम कहते हैं मतलब खानदानी पेट होना चाहिए, हमें राइट? मतलब उसकी ब्रीड क्या है,
हम ब्रीड देख के पेट लेते हैं, और हम फ्रेंडशिप हो या बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, हम उसको ब्रीड ही नहीं देखते, ऐसे कैसे हो गया, फिर बोलेंगे धोखा हो गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया वाज रॉन्ग, इफ आई चूज अ रॉन्ग पर्सन देन धोखा ही होगा, राइट? तो चूज करने में 3 महीने लीजिए, 6 महीने लीजिए, पूरी जिंदगी का सवाल है भाई, मेरे दिल का सवाल है। दिल ऐसी चीज थोड़ी किसी को भी दे दें, आओ तुम इस पे कुछ भी करो, इसको पीसेस कर दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो दिल का मामला है ना, ये प्रेशियस ऑर्गन है। हम कहते हैं यार दिल का मामला है, इस पे दिमाग नहीं चलता ना, तो दैट मीन्स प्रेशियस रखिए, उसको प्रोटेक्टेड रखिए अपने रब के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो वफादार होते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, क्योंकि उनसे वफादार कोई नहीं है। तो उनके साथ थोड़ा सा ध्यान से, अगर हम उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें शांत रहना चाहिए, फिर चुप ही रहना बेहतर होता है, क्योंकि अपने कर्म खराब नहीं करने। हाँ, हो सकता है वो बेटर नहीं जानते, वो हमारी परवरिश हमारे एज या हमारे जनरेशन के मुताबिक नहीं कर पाते, बट उनके लिए फिर कुछ बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि जनरेशन गैप है। जब जनरेशन गैप है तो वी शुड एक्सेप्ट देम द वे दे आर, एंड वी शुड ट्राई टू हैव अ कम्युनिकेशन और मेंटेन डिस्टेंस, साइलेंस, टू मेंटेन द रिस्पेक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दिल की बात आ जाए, हार्ट का मामला है, प्लीज प्रोटेक्ट इट। अपना हेल्थ इशू खरीदना नहीं है रिश्ते के साथ साथ, सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। और अगर उसका ब्रीड अच्छा है, मतलब वो एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, हम कभी कभी क्या रहता, किसी की गाड़ी देख के, किसी का ड्रेसिंग सेंस देख के हम इम्प्रेस हो जाती हैं, गर्ल्स खासकर। तो वी हैव टू मेक श्योर, यंग गर्ल्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, प्लीज सेलेक्ट वाइजली। वो ऐसा ना हो मेंटल हेल्थ का इशू क्रिएट करके चला जाए आपकी लाइफ से। तो वो कभी कभी शो ऑफ पे नहीं जाना, एक इंसान का करेक्टर जानना, मतलब क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो लॉयल हो सकता है, उसकी टेस्टिंग करनी है छोटी छोटी, एज अ फ्रेंड बन के उसको अंडरस्टैंड करना कि ये मेरी ट्राइब है, मेरी वाइब मिलती है नहीं मिलती है, क्या ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं है, ये मुझे एनकरेज करता है, तो ध्यान रखना है। सो ये जो पॉजिटिवनेस है, डाउट है, फाइट है, एग्रेसिवनेस है, एंगर है, रॉन्ग वर्ड्स का यूज करना, ये सब लोअर वोकैबुलरी है, ये लोअर एनर्जी है। लोअर एनर्जी से लोअर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ही क्रिएट होगी, और हम जब इसी का अपोजिट में जाएंगे, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी बात होती है। ट्रस्ट, किस पे ट्रस्ट? रब पे, बॉयफ्रेंड पे नहीं, गर्लफ्रेंड पे नहीं, ट्रस्ट अपने आप पर, अपने रब पे। ट्रस्ट अपने वेलविशर पे, जो माँ हो या फादर हो, जो हमें सजेशन देता है टाइम पर, बताता है कि हे ये थोड़ा रेड साइड है, थोड़ा सा अलर्ट रहना, रेड फ्लैग है, ध्यान रखना। दैट मीन्स हम एक्सप्लोर तो करेंगे रिश्ते को, लेकिन ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे कि एक सजेशन एडवाइस आई है, जिनके पास तजुर्बा है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, हम उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पेन और हमारी खुशी का वो पार्टनर होते हैं, हमारी फैमिली या हमारे जो सच्चे दोस्त होते हैं, वेल विशर्स। तो सबसे बड़ा कोशिश ये करना है, अगर ट्रस्ट है खुद पर और रब पे कि ये इंसान परख के ठीक निकला, अगर हमें उसके लिए रेस्पेक्ट है, सबसे बड़ी बात है रेस्पेक्ट, हम कंप्रोमाइज करते हैं जब हमें किसी के लिए रेस्पेक्ट होती है, और अगर हमें उसके साथ अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट डेवलप हुआ है, वो 100% वो रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा और उसमें कोई हेल्थ इशू नहीं आ सकता, क्योंकि लव की फाउंडेशन यही है। और जहाँ ये 3 चीज़ें नहीं है, वहाँ लव नहीं है, उस पर ध्यान देना है कि ये हमें मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट करेगा पक्का। तो दैट मीन्स मेनोपॉज की तरह हमें ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन आ सकती है, हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है। कभी कभी हार्ट ब्रेक ना लिखा होता है नसीब में तब, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस, प्लीज मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हो या काउंसलर्स हो, रीच आउट टू देम एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकम अ सेल्फ लवर। एंड सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, अगर सेल्फ लवर नहीं तो सेल्फ केयर, कम से कम सेल्फ केयर, मिनिमम रिक्वायरमेंट, बियर मिनिमम। And self-care not in the terms of skincare routines or the aesthetics, but self-care in terms of आप अपनी health, mental, emotional, physical, उसका ध्यान रख रहे हैं। मतलब हम अंदर फील कैसा कर रहे हैं, Instagram self-care नहीं। वो तो मतलब एक्सटर्नल एक्स्ट्रा हो जाएगा। Exactly. तो वो भी जरूरी है मेरे ख्याल से, बट नॉट एज मेजर पोर्शन, 10%। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। So thank you so People much. want to look beautiful. Yeah, but I think हमने self care ना लिमिट ही सिर्फ उसको कर दिया है। Yes. We forget how we feel internally. हाँ, very true. And that's very important. Even when we are talking about your relationships, your career, your success, I think ये personal मेरे experience से मैं बोलूँगी, अपने बारे में अच्छा feel करना, अपने बारे में अच्छा बोलना, positive self talk is very important if you are a youngster. Do not indulge in negative self talk. बहुत आगे जाती हैं वो चीज़ें, आप अपने बारे में कैसा फील करते हो, इट एक्चुअली चेंजेस कि लोग आपके बारे में क्या फील करते हैं, इफ आई कैन से दैट। सो एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक यू मैम, बिकॉज अक्सर होता क्या है
या तो कोई पेरेंट के पर्सपेक्टिव से बोलता है या कोई हेल्थ के प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से बोलता है, कोई होता है जो यंगस्टर के पर्सपेक्टिव से बोलता है, बट इन दिस कॉन्वर्सेशन आपने ना तीनों पर्सपेक्टिव्स मिक्स करके एक एक्चुअल उसको कंबाइन करके, आई एम नॉट इवन एबल टू फाइंड द राइट वर्ड, होलिस्टिक वेलबीइंग ना, या होलिस्टिक वेलबीइंग अगेन, बिकॉज़ आई नो एनवायरनमेंट क्या क्रिएट करता है. या सो यू हैव पुट इट वेरी ब्यूटिफुली कि इवन इफ देयर इज समबडी जिसके मे बी पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं, यू नो, बिकॉज यूजुअली जब हम बोलते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि आप समझते ही नहीं हो पेरेंट्स कैसे चीजें करते हैं, राइट? सो देन यू हैव पुट ऑल द सिचुएशंस अक्रॉस एंड देन सजेस्टेड कि आप किस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो. So thank you so much. I would like for to share that. one very important advice to everyone, all of us, which I have practiced since 2020. Okay. And there is a good improvement. I have seen improvement in myself. That is, you know, we can say stress, anxiety or lack of patience creates anger issue, frustration, disappointment. जब ये होता है तो हम गुस्सा करते हैं. जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा कर्मा गड़बड़ हो जाता है, अकाउंट. अब अगर मैं अकाउंट ठीक रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट तो 100% आएगी, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि लाइफ ऐसी ही है, एक जैसी नहीं चलेगी. सो वो जो सारा फ्रस्ट्रेशन सारा कुछ आए, बट हम एंगर तक उसको नहीं जाने दें. एंगर से फिर अगर सेल्फ है तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, एक को डैमेज करेगा, बट जिस पर हम यूज़ करते हैं तो दूसरे को भी डैमेज करेगा. तो उसका एक स्पिरिचुअल टेक्निक है कि हम क्या करते हैं, किसी की भी जब आर्ग्यूमेंट हो जाए, पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली में हो, बाहर हो, जब लगेगा आर्गुमेंट हो सकता है तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है. एक, आई कांटेक्ट उस टाइम उस पर्सन के साथ नहीं करना है, उससे गुस्सा आ सकता है. दूसरा, हमें ये करना है कि टंग जो है, बिकॉज उस टाइम रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है, पक्का वो और एक्सटेंड हो जाएगा. तो वी आर एक्चुअली 2 लोग डैमेज हो रहे हैं, एक तो बच्चे. तो हम क्या करेंगे, टंग जो है रोल करेंगे, बिकॉज टंग अगर ऐसे है तो ब्रेन उसका इस्तेमाल करेगा, उससे कुछ ना कुछ बोलेगा जो यहाँ थॉट होगा. और अगर किसी ने ट्रिगर किया है तो रिएक्शन तो होगा. एम आई राइट? सो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, ये यूनिवर्सल लॉ है. बात ट्रिगर जो हुआ है उसकी नहीं है, बात है उसको ट्रिगर जो करने वाला है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है उसमें. तो कोशिश ये है माओं को, खासकर फीमेल्स के लिए, अगर बच्चे ट्रिगर करते हैं उनको, वो तो बच्चे हैं, मैं माँ हूँ तो पेशेंस तो मुझ में होनी चाहिए, हैंडलिंग कैपेसिटी मेरी होनी चाहिए. मैं तो ब्लेम नहीं कर सकती, उनको ट्रेन करना मेरा काम है. हम तो पेट को भी ट्रेन करते हैं, इंसान का ब्रेन क्यों नहीं ट्रेन कर सकते? बात ट्रेनिंग की है, बात टीचिंग की नहीं है. हमें टीचर नहीं बनना घर में, हमें ट्रेनर बनना है. बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है विद काइंडनेस एंड लव. तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमें टंग रोल करनी चाहिए. तो टंग जब हम अंदर की ओर लेते हैं तो उसका ओनर हार्ट बनता है, ना कि ब्रेन. और न्यूरो साइंस के मुताबिक हार्ट का अपना न्यूरल सिस्टम है जो कि ब्रेन को सप्लाई करता है, सिग्नल भेजता है. हम तभी कहते हैं ना, यार मैंने दिल की सुनी, इंट्यूशन की सुनी, अंतरात्मा की आवाज़ थी तो ये काम किया तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा था. कुछ चीज़ें हमारे इंटेलेक्ट से बाहर है, इंटेलिजेंस से बाहर है, वो हार्ट के अंदर आता है. इसका अपना एक सिस्टम है. तो अगर हम टंग को रोल करें तो उससे क्या होगा, हमें काबू आएगा. हम वही बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं. हम कहते हैं रेस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट. ये बोलना आसान है बट इसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए. रोज़ खुद को माइंडफुली याद दिलाना है. तो वो जो मॉर्निंग का मेडिटेशन करना है, 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने जो बताया, वो जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा आप अंदर से अपने आप को कमांड दे रहे हैं कि पूरा दिन में सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगी और मैं अपना टंग रोल रखूंगी जो भी सिचुएशन आ जाए, फैमिली में या आउटसाइड ऑफिस में. तो आप टंग रोल करेंगे, आप आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे. अब किसी का बहुत एग्रेसिव नेचर हो, स्पेशली बॉयज़, कभी कभी होता है, बट आजकल यूथ में तो जेंडर रहा नहीं, तो सब सेम ही हो रहा है. ब्रेन की बात है, ब्रेन से सेरिब्रल तो हमारी सेम ही कैपेबिलिटी, इक्वालिटी है वहाँ पे. बॉडी से हम अलग अलग है, मतलब फिजियोलॉजी हमारी अलग है, बायोलॉजिकली हम अलग है, बट नर्वस सिस्टम हमारा सेम ही है, इंटेलिजेंस. अगर और थोड़ा एग्रेशन है तो हम ये जो नेल्स है, आप एक होता है हम ऐसे मुट्ठी बनाएंगे तो हम मुक्का मार सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ये फाइट वाला काम है. तो आप किसी को उस टाइम हिट कर सकते हैं या खुद को कर सकते हैं. तो वो उससे अच्छा है हम ये नेल्स जो है ना, आप देखिए ये इस पोर्शन में लगना चाहिए, यहाँ ऐसे. तो हम अपने आप को काबू में लाते हैं, कंट्रोल, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल. एंड सेल्फ कंट्रोल इज अ सुपर पावर. यू विल बिकम वेरी पावरफुल. सिर्फ पैसे और स्टेटस से हम पावरफुल नहीं बनते, करेक्टर बिल्डिंग करते करते हम पावरफुल बनते हैं. एंड ये सुपर पावर है. आपने ऐसे नेल से अपने आप को चुबाया, दैट मीन्स अपने आप को रिमाइंडर दिया कि दिस इज नॉट द सिचुएशन टू स्पीक, रिएक्ट.
इट इज़ द सिचुएशन टू रिस्पॉन्ड. अब रिस्पॉन्ड तो लेटर होगा, जब कूल डाउन होगा सब कुछ, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 आवर बाद. उस टाइम पर सबसे बड़ी बात है टंग रोल, आईज लुक एट डाउन और समवेयर एल्स, और क्लोज योर आईज एंड हैंड लाइक दिस. तो हम इस दुनिया से जो एग्रेसिव एनर्जी है उसको हमेशा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. उतनी देर, ट्रस्ट मी, अगर आपने ब्रीद इन किया और होल्ड किया, उससे बड़ा स्ट्रांग इंसान नहीं है. और कभी कभी ये प्रैक्टिस करते करते हम ऐसे काम बनते हैं कि कामनेस आपकी रेडिएट होती है एनर्जेटिकली. कोई भी इंसान आपको देख के बोलेगा आपके चेहरे पे बड़ी कामनेस है, वो इन्हीं चीज़ों से आएगी. जब हम एग्रेसिव एनर्जी को बाय बाय करें, डिटैच करें अपने आप से, गुड बाय करें कि इसका हमारे साथ क्या लेना देना है, ये तो रावण की ताकत है, तो डेविल एनर्जी है. तो मैं चाहती हूँ मैं गॉड एनर्जी को, एट्रीब्यूट को इम्प्रूव करूँ. दैट इज साइलेंस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. नेचर इज साइलेंट. तो नेचर के साथ रहना, हमें साइलेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है. साइलेंस में हमें सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, अपनी आवाज़ भी, दूसरों की भी. और अगर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे अपनी बॉडी की और ये टिप्स को प्रैक्टिस करेंगे, सिचुएशनल, पहले नहीं आएगा, टाइम लगेगा, बट एक दिन आपको ये आ जाएगा पक्का, बिकॉज मुझे आ गया है. तो चैलेंजेस मेरे 2020 से बहुत रहे हैं. मेरी पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई है. पहले मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, मैं वेलबींग कोच बनी 2020 के बाद, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए ओवरऑल वेलबींग को गाइड करना बहुत ज़रूरी है. और सबसे बड़ी बात थी, लोग मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते थे. जो मेरा 2007 से लेके 2020 तक जो करियर रहा है, तो उसमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लीडिंग रही हूँ मैं. उसमें लोगों को बहुत ट्रस्ट था मुझ पे. तो उन्हीं के फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी थे, उनके इमोशनल इश्यूज़ थे, उनके स्पिरिचुअल हेल्थ को लेके इम्प्रूव करना था साइंटिफिकली, क्योंकि हमें कभी कभी रिलीजियस प्रैक्टिस समझ में नहीं आती न्यू जनरेशन को. तो आई हैड टू वर्क विद न्यूरो साइंटिस्ट, आई हैड टू वर्क विद क्वांटम हीलर्स, आई हैड टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली. स्पिरिचुअलिटी कहाँ कंबाइन हो रही है और क्वांटम हीलिंग पे कैसे काम किया जा सकता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज अ very honest contribution for the humanity, because I believe humanity is the best religion. We should respect all other religions, but we should go evolved so much that we understand humanity is the religion, and as a human being, is my contribution, little contribution, making any difference in someone's life? I wanted to make a difference for underprivileged girls. Especially since 2020. Okay. So I had to donate all my assets, whatever I had little bit. Wow. जो मेरी कुछ कमाई थी लाइफ की, मैंने वो सब इन्वेस्ट करके हमने अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को लिया और उनको ट्रेन किया. Okay. और उनको जॉब दिया. सबसे बड़ी बात है प्लेसमेंट. तो वो हेल्थ, ये जो बेसिक थेरेपी होती है, वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो घर जाके अपना बेसिक पेन मैनेजमेंट करते हैं. सो दे बिकम पेन मैनेजमेंट थेरेपिस्ट, एंड दे आर एबल टू हील पीपल. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट डॉक्टर APJ कलाम इन 2013. कलाम सर ने मुझे बोला था कि आप हीलिंग हैंड्स आपके हैं, सो मेक श्योर जब आप ये बॉडी छोड़ें तो आप 100 हीलिंग हैंड्स क्रिएट करें. तो गुड न्यूज़ ये है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ. मेरी 100 गर्ल्स ट्रेन हो गई, उनके जॉब लग गए. तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैं बॉडी जब भी छोड़ूं, क्योंकि इसका एज इज जस्ट द नंबर है, मैं राइट, कोई गारंटी नहीं है कोविड के बाद खासकर. तो मेरे पीछे हीलिंग हैंड्स लोगों को हील करते रहेंगे और प्लस मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी. मतलब उनकी जर्नी का मैं पार्ट हूँ. तो आई फील दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन. बिल्कुल. वी डू समथिंग नॉट फॉर आवरसेल्व्स, वी डू इट अनकंडीशनली फॉर द सेक ऑफ डिवाइन, जिसने मुझे जिंदा रखा कोविड के बाद. कोविड के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरी न्यू बर्थ हुआ, मुझे नई लाइफ मिली. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा हर एक दिन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि मुझे शाम को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सुकून से नींद आनी चाहिए, कि मैंने दिन में जो मौका मिला मैंने वो अच्छे से निभाया, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ. तो अगर हम लाइफ को सिंपल तरीके से देखें और इसको जिए अनकंडीशनली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लैनेट है मदर अर्थ, ये इवॉल्व होगा ऑटोमेटिकली. देन वी विल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, नेचर, वननेस जिसको कहते हैं. एम आई राइट? तो हम सब अगर सिर्फ काम रहें, कूल रहें, हैप्पी रहें, तो लाइफ उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं जितनी हम बना देते हैं. हाँ, हमें एक्चुअली ये जो मीडिया का क्रिएट होता है ना ऑनलाइन, वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं TRP के लिए.
बिकॉज बायर ज़्यादा है उसके, आपका पॉजिटिव शो है, तो इसको लोगों को स्प्रेड करने में तकलीफ ज़रूर होगी क्योंकि पॉजिटिव है, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, इससे लोगों को बेनिफिट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो नेगेटिव शोज होते हैं ना, उसके टीआरपीज हाई हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल बाय नेगेटिविटी फास्टर देन द पॉजिटिविटी। Controversies, arguments. Yes, but I am so proud of you. I know your mother very well since many years. It's a long association. Right. Since 2013, I think I know her, फरीदाबाद से यहाँ तक की जो मेरी जर्नी है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा, एंड आई रियली रेस्पेक्ट हर अ लॉट। Thank you so शी much. इज लाइक अ ह्यूमन एंजल फॉर मी। She is. हाँ, और आप बिल्कुल उसी पे गए हो मुझे ऐसा लग रहा है उनका यंगर वर्जन देख रही हूँ I take pride in that. या एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप पॉजिटिव शो कर रहे हो, Thank you आप so पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो और आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। आई बिलीव इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, दिस इज कॉल्ड सक्सेस। बिकॉज जो ये इनर वेल्थ होता है, जो वेल्थ होता है एक्चुअली पॉजिटिव वाला साइड, तो आई बिलीव वो बियॉन्ड मटेरियलिज्म वेल्थ है, मेरा True. मनी बिल्कुल। एंड पावर गेम, फेम गेम। बिल्कुल। ये जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो सोसाइटी में, मुझे लग रहा है कि इससे बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, और आपकी जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी मतलब सच में ये प्राउड की बात है। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया कि 2020 से आपकी जो जर्नी है वो एकदम ट्रांजिशन में आई है कि आप उससे पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे आपने इतना Very true. फेम गेन किया, इतना काम किया, एंड देन नाउ यू आर वर्किंग एज अ वेलबींग कोच। What is the difference you feel in yourself and your life working only as a physiotherapist and now as a holistic well-being coach? I believe physiotherapy was my that time whole soul, kind of a ambition to become the leading physiotherapist of this country. Okay. And वो गोल ना अचीव हो गया जल्दी हाँ? Wow. तो ह्यूमंस में क्या होता है, जब गोल अचीव हो जाता है ना, तो वी सर्च फॉर समथिंग एल्स आल्सो, एम आई राइट? वो नॉर्मल है, ह्यूमन बिहेवियर। बिल्कुल। तो मेरा वो फेम बहुत जल्दी आया लाइफ में विद डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड वेल विशर्स। लॉट ऑफ वेल विशर्स वर देयर, बहुत दुआएं रही उसमें, बिकॉज पीपल यूज्ड टू से कि मेरे हाथ में शफा है, हीलिंग है। तो वो जो शुरुआत हुई हीलिंग की और वो जो स्प्रेड हुआ और जो मैंने नेशनल अवार्ड्स लिए, इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए, तो उसके बाद लगा कि वो एम्बिशन वाला साइड मेरा 2020 में कोविड में गायब हो गया। Okay. और उसके बाद जन्म लिया वेलबींग ने, वो भी होलिस्टिक। तो फिजियोथेरेपी उसमें 20% रहा, Okay. 80% जो है बाकी डिपार्टमेंट्स आए। इमोशनल वेलबींग में मैं बहुत कुछ कर पाई, मेंटल वेलबींग में मैंने साइकोलॉजी का कोर्स साइड बाय साइड किया, प्रोफेशनली भी मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए थी। तो आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स कि ये जो थॉट ही है, जब यही सारा थॉट जैसा होगा, इमोशन वैसी होती है, तो जब सारा चेंज हो जाता है, तो व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड कि एनर्जेटिकली ये कैसे रिलेट हो रहा है। तो मैंने स्टडी किया 4 years, Okay. मैंने कोर्स कंप्लीट किया, साइड बाय साइड प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की पेशेंट्स पे, रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो मैं बोलूँगी इसमें फिजियोथेरेपी बिकेम अ बेबी, एक ट्री का एक ब्रांच Right. फिजिकल हेल्थ का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तब भी बहुत कुछ मैं करती थी, मैंने किया है कंट्री के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी, MNCs के लिए भी, प्रिवेंशन मैनेजमेंट में बहुत कुछ किया। 33,000 हमने 2020 से पहले 2018 तक हमने 33,000 सर्जरी प्रिवेंशन किया था। नी सर्जरीज एंड बैक की जो स्लिप डिस्क होती है या जो नी में इंजरीज आती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब सर्जन ने सर्जरी बोला, तब लोग बहुत फेथ के साथ हमारे पास आते थे, ट्रीटमेंट कराते थे, ठीक होके गए, जिस पर मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं। लेकिन ये जो वेलबींग है, ये सेटिस्फाइंग है, इसमें मैं नहीं है, इसमें है कंट्रीब्यूशन, डिवाइन सर्विस। जिंदा हूँ तो कंट्रीब्यूट करूँ, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। सो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा लार्जर है, ये मतलब ओशन है, और फिजियोथेरेपी एक छोटा रिवर था, वैसा वाला हो गया। 20% वो रहा इसमें। Nice, but you're still working वो 20% में भी, and जैसे सर्जरी प्रिवेंशन अभी भी हमारा एक्सपर्टीज है ना, तो जिसको उसके बारे में भी जैसे थोड़ा सा अगर आप बता सकें। फेस का जो पैरालिसिस हो जाता है लोगों का, अगर वो जितना इम्प्रूव हो जाए बाकी जगह, अच्छी बात है, सारे जगह ट्रीटमेंट्स है, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जो रह जाए कुछ भी, तो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस के साथ रब पे भरोसा करके और हम पे एक बारी ट्राई करिए कि यार भी आ जाइए। तो हमारा इसमें 100% रिजल्ट है फेशियल पैल्सी में, फेशियल पैरालिसिस में। जैसे कि नी में अगर सर्जरी आती है, मतलब कहीं वर्ड यूज़ करते हैं डॉक्टर से, सर्जरी केस है बैक में या बॉडी में किसी भी जॉइंट में, एक बार हमारे पास आइए, उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास। हम कोई भी सर्जरी आजकल टेक्नोलॉजी से प्रिवेंट कर सकते हैं, 99% कोशिश कर सकते हैं, अगर बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अभी तक तो आया है, रब की कुछ मेहर है हम पे, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड वी आर एबल टू सर्व पीपल। तब आप आ सकते हैं। अगर स्लिप डिस्क का इशू है, ACL टीयर है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी है,
और कोई अदर इसका भी अगर नेक का कोई इशू है, माइग्रेन है, वर्टिगो है और आई मसल्स की वीकनेस की अगर है तो उसकी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आप आ सकते हैं। एंटी रिंकल आ चुका है हमारे पास, टमी रिडक्शन का भी अब मेडिकली उसका भी हमारे पास में अच्छा सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जिनको नी में पेन होता है वो जिम नहीं जा सकते, बैक पेन है नहीं जा सकते, और अगर वेट रिडक्शन करना है तो वो हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि जो नर्व सप्लाई करती है गट को, हम नर्व को स्टिमुलेट, एज ए सेड नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान है, हम उसको स्टिमुलेट करके उनको ऑटोमेटिकली जो यहाँ BMI चेंज हो जाता है बॉडी में, एंड पीपल बहुत हेल्दी वे से बेनिफिट करते हैं। और आप मुझे देख सकते हैं इंटरनेट पे भी, बिफोर आफ्टर आपको मैं बहुत थोड़ी हेल्दी दिखूंगी, अब मैं एकदम डिफरेंट दिखूंगी, तो वो मैंने खुद पे भी इम्प्लीमेंट किया है। हमने 2 टेक्नोलॉजीज़ और लाई है विमेन के लिए। जो मेमोग्राफी होता है वो थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, उसका बहुत ही कंप्रेस करना, उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए भी विमेन हेल्थ पर हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। सिर्फ स्कैनिंग है, विदाउट टच आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मेमोग्राफी के बदले जो अल्टरनेटिव हम लेके आए माइक्रो लेवल पर, वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर फिर हमें लगा मेमोग्राफी की ज़रूरत है तो हम उसके बाद मेमोग्राफी करा सकते हैं। आर्टरीज़ में कार्डियो हेल्थ पर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी सपोर्ट लेके आ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ट्रेडमिल करते करते हार्ट अटैक हो जाता है, और ये जो यूथ हम खो रहे हैं कोविड के बाद, तो वो हट्टे कट्टे होते हैं, सब स्ट्रीक है और अचानक हार्ट अटैक आ जाता है किसी को गोल्फ खेलते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए। तो उसकी भी एक टेक्नोलॉजी हम लॉन्च कर चुके हैं। ये सब टेक्नोलॉजी जर्मन बेस्ड है और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। आइडेंटिफिकेशन अर्ली है, अर्ली डिटेक्शन, व्हेन वी से माइक्रो लेवल पर, बहुत माइन्यूट लेवल पर डिटेक्शन हो सकती है कि आर्टरी में कहाँ ब्लॉकेज है। अगर वो आइडेंटिफाई अर्ली हो जाए तो लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके उसका इलाज टाइम पर करा सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ भी हो, ट्रस्ट मी, वी आर देयर, वेयर एवर यू नीड आवर हेल्प, आई एम देयर। वीडियो कॉल कंसल्टेशन पे भी आई एम अवेलेबल, और आप क्लिनिक कभी भी विजिट कर सकते हैं, गुड़गांव सुशांत लोग। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई थिंक बहुत रेलिवेंट इश्यूज जो हैं वो आपने बताए हैं। अक्सर हम स्किप कर देते हैं, या लोग अपनी ही एजम्पशंस में रहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। समटाइम्स पीपल आर इवन सेइंग कि वैक्सीन्स का इफेक्ट है जी, कि इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और मल्टीपल थ्योरीज गो अराउंड, बट देन it's good that we are focusing more on the solution rather than the problem blaming itself. or cribbing. Right. Yeah. आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ थैंक यू सो मच इस शो को होस्ट करने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक इट्स पीपल लाइक यू एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल लाइक यू जो मुझे भी इंस्पायर करती है टू बी इन दिस लाइन एंड कंटिन्यू डूइंग थिंग्स लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच मैम, पूरा टाइम निकालने के लिए, इतनी प्यारी कॉन्वर्सेशन करने के लिए। पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टॉपिक हमने हेल्थ का ज़रूर लिया, बट जितना लाइफ का एस्पेक्ट हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, आई थिंक it's just amazing how you have put everything in such a short span of time. If anybody wants to reach out to ma'am, you can even directly reach out to her, or you can get in touch with us and we'll be happy to connect you to her. Make sure कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं कि पॉडकास्ट है, बातें चल रही हैं, आप इस वीडियो से टेक अवेज ले रहे हैं, जो टिप्स मैम ने दी हैं, जो लाइफ लेसन्स और एक्सपीरियंसेस मैम ने शेयर किए हैं, गिव अ थॉट ऑन दैट, उसे माइंडफुली सोचिए, एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में उसका कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट आपको खुद दिखेगा। And rest, you know that if there's any other topic that you want us to cover, put it in the comments, like and share this video, and stay tuned for the next episode. Thank you so much.